So very good morning, everyone. We were doing chapter 16, our goals, rights and duties. Yesterday we learned about what are the rules. Okay, now write in the chat box which rule you had to follow at your home. घर में भी मम्मा ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं ना, कोई एक रूल राइट इन द चैट बॉक्स. Write in the chat box any one rule which you had to follow at your home. I am reading your chat side by side. Yes. Wake up early in the morning, clean our room, respect the elders, very good. Fix time to watch TV, very good. Very good. Wash your hands before eating. Do not fight with brother in home. Okay. Close the door when air conditioner is on. Very good. Very good. So you people are writing rules in the chat box. Very good. Now, let me ask you one thing. Do you follow these rules at home? Okay. Rules हो गए over. Now, do you follow these rules? Yes, yes, सब बच्चे follow करते हैं. Okay, now tell me, if you don't follow rules, what will happen? अगर आप उस rule को follow नहीं करोगे तो क्या होगा? Let me unmute yours. Raise your hand. Madhvi. Madhvi, I am going to unmute you. माधवी अनम्यूट करो बेटे खुद को और बोलो. If don't follow these rules, we are If you will not follow the rule, what will happen? we it will catch us. Police will catch us. तो बेटे आई एम आस्किंग इफ यू विल नॉट फॉलो रूल एट होम. जो मम्मा ने आपका रूल बनाया है घर में, अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? It will disturb our routine. Very good. Your routine will be disturbed. Okay, mute yourself. Mute yourself and एकम. लोअर भी हैंड कर लो बच्चे. एकम. Good morning. Yes. Ma'am, mother scolded. Okay, your mother will scold you. Good. So everyone lower your hands. If you don't follow the rules, what happens? There will be problem in functioning of the home. घर का जो मम्मा ने सिस्टम बनाया है, घर के जो रूल्स बनाए हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी. That will not be that will not look nice और proper functioning नहीं होगी. सबको problems create हो जाएंगी and they will start fighting, है ना? All the members of the family will start fighting. Is it so? So rules are very necessary, not only at home, in school, but also at a large scale in our country. कंट्री में भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. These rules are meant for us. हमारे लिए ही इन रूल्स को बनाया गया है ताकि देश जो है, हमारी जो कंट्री है, वो प्रॉपरली चल सके. Yes, Vanshika, do you want to ask something? Unmute yourself.
Okay, now she has lowered her hand. So, bete, we had already learned about the Constitution. Constitution is a book of laws in which certain laws have been explained. टारगेट क्या था, गोल्स क्या थे कि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, है ना. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सारे पढ़ें और सबको पढ़ने का अधिकार हो, सबको काम करने का अधिकार हो और सारे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपने पर्सन्स की भी और हर एक के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करें. और हर एक को ये अधिकार दिया गया कि गवर्नमेंट बनाने में उनका रोल. टुडे वी आर टू डू फंडामेंटल राइट्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल? कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? Write in the chat box. Fundamental rights means okay. Okay, let me explain. I am not getting proper answer. Fundamental rights means अधिकार. एक बच्चे ने लिखा है गुड. बेसिक राइट्स, हमें कुछ बेसिक राइट्स मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं कि इंडिया का हर पर्सन, इंडिया का हर सिटीजन उस राइट को अवेल कर सकता है, अपनी उस राइट का इस्तेमाल कर सकता है. बेसिक राइट्स मतलब अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो उस पर्सन को वो अधिकार मिल जाता है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है. वो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. यू कैन सी हियर इन दिस बॉक्स. I have mentioned all the fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. अब हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे. From this, the Constitution of India gives the citizens of our country some basic rights. बेसिक राइट्स मिले हुए हैं जिनको कोई भी हमसे नहीं ले सकता. दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम. सिटीजन से उन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता. दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स mentioned in the Constitution of India. First one is right to equality. इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वल होना, कि सब लोग इक्वल है. ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. रिलीजन क्या होता है कि वो किस गॉड को वर्शिप करते हैं. जेंडर कि वो बॉय है, गर्ल है या अदर्स है. कास्ट उनकी कौन सी जाति है, वो कौन सा काम करते हैं. प्लेस ऑफ बर्थ वो कहाँ पैदा हुए हैं. ये नहीं कि अगर वो चेन्नई में पैदा हुआ है तो हम पंजाब के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सब लोग जहाँ पे भी रहते हैं, जिधर भी पैदा हुए हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, किसी भी रिलीजन को मानते हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वली equal समझा जाएगा in the eyes of laws. They will also be given equal protection by the law. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो उनको प्रोटेक्ट करना है लॉ ने, वो भी सबको इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि गर्ल्स जैसे हैं, गर्ल्स ने अगर क्राइम किया है तो गर्ल्स को भी पनिशमेंट मिलेगी, बॉयज़ ने क्राइम किया है तो बॉयज़ को भी मिलेगी. अगर वो रिलीजन है, रिलीजन कोई भी रिलीजन अगर कुछ गलत काम करता है तो
ये नहीं है कि सिर्फ एक रिलीजन के पर्सन को ही पनिशमेंट मिलेगी, सब इक्वल है। अगर सबको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, अगर वो कुछ क्राइम करते हैं तो सबको वही सेम पनिशमेंट मिलेगी जो एक पर्सन को मिलती है। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट कम्स राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। किस चीज की आजादी? ऑल सिटीजन्स आर फ्री। फ्री है किस लिए? टू स्पीक, कुछ भी कोई भी बोल सकता है। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इसका मतलब है असेंबल मतलब होना है इकट्ठे होना, पीसफुली मतलब शांति के साथ। शांति के साथ हम ग्रुप बना करके कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। एंड विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? बॉडी पार्ट नहीं है ये आर्म्स। आर्म्स यहाँ पे है हथियार। बिना किसी हथियार के वो लोग कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली, गेट टुगेदर कर सकते हैं, पार्क में इकट्ठे हो सकते हैं, या किसी हॉल में इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उनके पास कोई हथियार, गन या कुछ और तरह के बॉम्ब्स वगैरह नहीं होने चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। फॉर्म एसोसिएशंस, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब ग्रुप बना सकते हैं जिसमें वो बैठ करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई भी एसोसिएशन, अगर सपोज आपके मोहल्ले की एसोसिएशन बनी है, उसका काम है मोहल्ले की सफाई का, तो दे कैन मेक, ऐसा नहीं है कि उनको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। तो मार्केट में हो तो मार्केट एसोसिएशन बन सकती है, मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं कि हमारी मार्केट मंडे से लेके सैटरडे तक खुली रहेगी, संडे को हम ऑफ रखेंगे, ये मार्केट एसोसिएशन तय करती है। तो कोई भी एसोसिएशन आप बना सकते हो, जैसे पीटीएम होती है, पेरेंट्स एसोसिएशन होती है ना। तो इस तरह से एनी एसोसिएशन कैन बी मेड। Then comes travel, reside and settle anywhere in the country. हम कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं कंट्री के बीच बीच में, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। अगर हम पंजाब में रहते हैं और हमें ट्रेवल करने गए चेन्नई में या फिर केरला में और या सिक्किम में हम घूमने गए, हमें वो प्लेस अच्छा लगा, तो हम वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं और हम वहाँ पर अपना कोई काम धंधा भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टीचर का बच्चा टीचर ही बनेगा, ठीक है। अगर वो बच्चा बिजनेस में अच्छा है तो वो बिजनेस भी खोल सकता है, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन वो ले सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो, वीजा लगवाना पड़ता है ना, लेकिन अगर अपनी कंट्री में ही रहना है, कंट्री में जा करके दूसरी जगह पे रहना है, कई बच्चे यहाँ पंजाब छोड़ करके बैंगलोर चले जाते हैं, गुरुग्राम चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, तो दे कैन गो देयर, दे कैन लिव देयर, दे कैन मेक देयर हाउस देयर, दे कैन चूज एनी प्रोफेशन, वो कोई भी काम वहाँ पे कर सकते हैं, ये उनको फ्रीडम मिला हुआ है। क्लियर? Recently, the Constitution of India has also made education free. अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन अपने इंस्टीट्यूशन में कंपलसरी कर दिया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years. 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, ये उन लोगों ने एक राइट बनाया है, राइट टू एजुकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? राइट टू एजुकेशन। गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, दे कैन टेक एडमिशंस एंड दे कैन गेट फ्री एजुकेशन एट द एज ऑफ 14। 14 साल तक वो
फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। और इट्स देयर राइट, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा जो है काम करता है या उसके पेरेंट्स जो है उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, तो भी वो बच्चा जो है एजुकेशन ले सकता है और स्कूल जा सकता है। कोई भी स्कूल जो है उसको रिफ्यूज नहीं करेगा, बिकॉज इट्स हिज फंडामेंटल राइट टू गेट एजुकेशन। Is it clear? So next we have right against exploitation. Just a minute. अगेंस्ट होता है उसके विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट करना मतलब किसी भी पर्सन को फोर्सफुली हम काम नहीं करवा सकते। अगर वो पर्सन मना कर देता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि उस बंदे से वो काम जबरदस्ती करवाया जाए। सपोज आपका कोई घर में नौकर है, सर्वेंट है, आपकी मेड है, वो आपको मना कर देते हैं कि हमने यहाँ पे काम नहीं करना, तो दे कैन लीव द जॉब, दे कैन ज्वाइन समवेयर एल्स। अब जो मालिक है उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम मेरी जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, तुझे यहाँ पे जॉब करनी ही पड़ेगी, ऐसा वो नहीं कर सकता। या फिर कोई पर्सन है, उसको 1000 रुपीज आप दे रहे हो काम करने के लिए, आपकी सेटलमेंट हो गई आपकी मेड के साथ कि तुम मेरे घर का काम करोगी, मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, लेकिन आप 1000 की जगह उसको 500 रुपीज दे रहे हो या फिर पैसे ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसे में वो पर्सन आपका काम छोड़ करके जा सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। और अगर रोकने की कोशिश करोगे तो वो पर्सन आपकी कंप्लेंट पुलिस से कर सकता है। या फिर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर वाटर क्वालिटी ठीक नहीं है, तो वो कंडीशंस जो हैं खराब हैं, आपकी हेल्थ को खराब कर रही हैं, तो ऐसे में आप कंप्लेंट कर सकते हो और वो पर्सन जो वो मालिक है फैक्ट्री का या कोई है, उसको पनिशमेंट हो सकती है। कोई भी पर्सन किसी से भी फोर्सफुली काम नहीं करवा सकता या फिर विदाउट सैलरी काम नहीं करवा सकता। और एक और है, 40 इयर्स से छोटे बच्चे से काम करवाना गैर कानूनी है। Children below 14 years are not allowed to be employed. इसको चाइल्ड लेबर कहा जाता है। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से अगर हम काम करवाते हैं, जो भी पर्सन काम करवाता है उसको पुलिस पकड़ के लेके जा सकती है, उसको पनिशमेंट मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन होता है धर्म, मीन्स किसी भी गॉड की हम पूजा कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू चूज एंड फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग सिख धर्म को के फॉलोअर्स हैं, कई लोग हिंदूज हैं, कोई मुस्लिम्स हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं, अलग अलग, कोई बुद्धिस्ट है, अलग अलग धर्म है इंडिया में। और हर बंदे को ये अधिकार दिया गया है, ये राइट दिया गया है कि वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है। अगर उसको हिंदुइज्म अच्छा नहीं लग रहा है तो वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर सकता है, क्रिश्चियनिटी अच्छा नहीं लगता है तो दे कैन शिफ्ट टू जैनिज्म। कोई भी अधिकार
पर्सन को ये अधिकार है कि वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है उसकी चॉइस के हिसाब से। ये नहीं है कि अगर वो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है तो उसको हिंदुइज्म ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब वो बड़ा हो या उसको ये रिलीजन अच्छा नहीं लगा, he or she can shift to the other religion, वो दूसरी रिलीजन के फॉलोअर्स बन सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कम्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हर सिटीजन्स को एक राइट दिया गया है, चाहे वो नंबर में कम है। कितने स्मॉल ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, जिनके रिलीजन्स डिफरेंट है, उनको कहते हैं माइनॉरिटीज। छोटे छोटे मतलब ग्रुप्स हैं, उसमें लोग बहुत कम हैं। जैसे पूरे इंडिया की बात करें तो उसमें जैन जो है बहुत कम लोग हैं। तो कोई भी पारसीज जैसे हैं वो भी बहुत कम है। तो इन जिनके ग्रुप्स कम होते हैं उनको हम कहते हैं माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज चाहे वो कम है तो ये नहीं है कि उनके अधिकार हम छीन लें। हर पर्सन को अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को आगे बढ़ाए, उसकी ग्रोथ करे और अपने कल्चर को भी माने। ये नहीं है कि वो लोग कम हैं तो वो अपने रिलीजन को या अपने कल्चर को नहीं आगे बढ़ा सकते। दिस इज रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज माइनॉरिटीज to preserve their culture and establish their educational institution of their choice. अगर वो अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कल्चर को अडॉप्ट करें, तो ये उनका राइट है। दे कैन प्रिजर्व का मतलब होता है सेव कर सकते हैं अपने कल्चर को। वो अपनी कल्चर को बढ़ाने के लिए अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं जिसमें उनको उनके धर्म के बारे में बताया जाता है, ताकि बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता चले और वो उसकी ग्रोथ कर सके। क्लियर? नेक्स्ट कम्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, रेमेडीज मतलब उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना। क्लियर? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब सब सिटीजन्स फ्री हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर उनके राइट्स को कोई भी पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट उसके राइट को छीनती है या उनसे उस अधिकार को छीना जाता है और लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है ये चीज सही नहीं है, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट भी किया जा सकती है। उसमें जैसे पहले 21 इयर्स के लोग ही वोट डाल सकते थे, लेकिन बाद में ये फील हुआ कि 18 इयर्स का बच्चा भी इतना समझदार हो जाता है कि वो वोट डाल सके। तो एज लिमिट जो 21 इयर्स थी अब उसको 18 इयर्स कर दिया गया है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कुछ चेंज लानी है, अमेंडमेंट करनी है, तो ये राइट दिया गया है कि सबकी सहमति के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज लाई जा सके। क्लियर? नेक्स्ट कम्स फंडामेंटल ड्यूटीज। आई थिंक time is less now, so let me ask you your doubts. We will continue this chapter tomorrow. Okay, so if you have any doubt you can ask me. Actually time हो गया बेटी, आपकी 12 बजे एक और क्लास है ना?